Namaste, my dear students. So, this is the part 2 and the final part video of our topic Guru Tegh Bahadur Ji. And before I tell you the story, what happens next, there is a little task for all of you. This task is of our grammar topic homophone. Yes, if you all remember that homophones are the words with same sound, two words with same sound, but the spelling, the letters in the word are different and the meaning is different. ऐसे words होते हैं homophones जिनका sound same होता है but जिनकी spellings and जिनके मतलब दो words के मतलब अलग होते हैं. So yes everyone, this task is assigned on page number 1 to 12. Okay, this is the page जिसकी story मैं आज आपको बताऊंगी in the second part, the last page of the worksheet of the story Guru Tegh Bahadur Ji, page number 12. So I will explain you the task. Okay, now you have to find the homophones of the below given words. Okay, for example, there is a word A and the word is here. Okay, and here का homophone आपको पेज नंबर 12 की लाइन नंबर 4 पे मिलेगा. Okay, hints are given to you, so you have to find the word. The first one is done for you. There is one word on line number 4, hearing, सुनना, and here means यहाँ. So here and here both are homophones. Okay, now word B, too. Okay, I miss you too. हम ऐसा बोलते हैं ना, so that is T-double-O. The sound of double O is oo. So this is too. Again on line number 4. Okay, page number 12 की line number 4 पे इसी word का एक homophone दिया गया है and I have given you the answer which is two. T-O-two. Now sentence word C is bed on which we sleep. The word D is weak means कमज़ोर हो जाना, to feel sick. E is inn, I-double-N, inn is a place where people gather with each other. एक ऐसा accommodation जहाँ लोग एक साथ होते हैं. Okay, it is like a restaurant. Now word F is off, O-double-F. Please turn off your mic or turn off your camera. Okay, and the last word जो आपको ढूंढना है, it is sight. Okay, and the hint is on line number 13, 13. Okay, so sight, C-I-T-E, sight. The meaning of the word is to say something, किसी चीज़ को confidence से बोलना and proof देना. Okay, so that is sight. Now every time please remember C has two sounds. C के दो sound होते हैं. One is S, one is K. Cat. अब C का S sound कब आता है? It comes when letter C, okay, is okay, has a leader. Letter C के आगे एक leader होता है. अगर वो I है, E है या फिर Y है, only then सिर्फ तब C का साउंड स होता है. फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट वर्ड ऑफ होमोफोन्स C-I-T-E. So my dear students, in our last video we saw that the 9th Guru of Sikhism was Guru Tegh Bahadur Ji after the death of his father Guru Har Gobind Singh Ji. Guru Har Gobind Singh Ji 8th Guru थे and उनकी डेथ के बाद 9th Guru बन गए उनके बेटे Guru Tegh Bahadur Ji. Now, in the last line, we saw that few Kashmiri Pandits approached Guruji for some help. Okay, because Mughals, the Mughal Emperor Aurangzeb, was trying to force them to change their religion from Hindu to Islamic. Now, let's see what happens. I will continue reading on page number 12. At that moment, Guru Tegh Bahadur Ji decided to fight against the Mughals. Okay, at that moment मतलब उस पल में गुरु जी ने जब कश्मीरी पंडित्स की
इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की, ओके, सोल्यूशन सोचना चाहा, तो डिसाइड कर लिया कि अब मुगल्स के अगेंस्ट हम फाइट करेंगे. ही सेड, इफ औरंगजेब बिकेम सक्सेसफुल इन चेंजिंग मी इनटू इस्लाम, आई प्रॉमिस दैट एवरी हिंदू विल एक्सेप्ट द चेंज. अब बहुत बड़ा कोटेशन, अगेन दिस इज़ अ साइट, ओके, साइटेशन दिया था किसने, गुरु टेग बहादुर जी ने, ये कह के कि अगर औरंगज़ेब मुझे मेरा धर्म अगर वो बदल सके इस्लाम में, तो ही अगर वो आप सबका भी धर्म, आप सबको भी उस वो धर्म परिवर्तन, द चेंज ऑफ रिलीजन, आप सबको भी अपनाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ऑन हियरिंग दिस औरंगज़ेब बिकेम मच ईगर. ईगर मीन्स वो और लालची, ग्रीडी बन गए, ओके, बहुत एक्साइटेड हो गए वो, टू चेंज गुरुजी's रिलीजन. अब जैसे ही उन्होंने ये कोटेशन, ये साइटेशन गुरुजी के मुंह से सुना कि वो तैयार हैं फाइट लेने के लिए, तो वो और ईगर हो गए. ही अरेस्टेड गुरुजी एंड टॉर्चर्ड, दैट मीन्स टू हर्ट हिम बैडली फॉर मैनी वीक्स. सो ये सुनते ही औरंगज़ेब ने गुरुजी को अरेस्ट कर लिया, अपने कब्ज़े में ले लिया और उनको बहुत टॉर्चर किया हफ्तों के लिए. बट गुरुजी नेवर गेव अप एज ही वॉज फर्म ऑन हिज डिसीजन. ओके, सो व्हाट हैपेंड, गुरुजी ने कभी भी, ओके, चीज़ों को छोड़ नहीं दिया, डर के वो भागे नहीं, या फिर ही नेवर गेव अप. ओके, गिव अप करना मतलब छोड़ देना, हिम्मत हार जाना. तो गुरुजी ने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी, एंड ही केप्ट ऑन फाइटिंग, और वो अपने डिसीजन पे फर्म थे, मतलब अड़े हुए थे अपने डिसीजन पे. ही वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज डिसीजन. दे इवन किल्ड द रिलेटिव्स ऑफ गुरुजी. अब गुरुजी की आंखों के आगे ही औरंगज़ेब ने उनके रिश्तेदारों का उनको भी मार दिया था. हिज कामनेस मेड औरंगज़ेब इम्पेशेंट. अपनी आंखों के सामने इतनी चीज़ें देखने के बाद भी गुरुजी वॉज जस्ट इन द मेडिटेशन पोज. ओके, वो अब तक मेडिटेशन में ही थे अपने, वो हर चीज़ को इग्नोर मार रहे थे और स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे थे. वो सब सारे सेक्रीफाइसेस को होते हुए देख रहे थे, बट एक सिंगल वर्ड नहीं कहा मुँह से. एंड ये देख के औरंगज़ेब को अब और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उन्हें पोक करने की कोशिश कर रहा था. सो ही ब्रूटली, क्रूअली, गुस्से में आके उन्होंने गुरुजी को, उनके सर को उनकी नीचे अपनी बॉडी से अलग कर दिया. दैट मीन्स ही बीहेडेड. बीहेड करना मतलब हेड को अपनी बाकी के बॉडी पार्ट से अलग कर देना. सो ही ब्रूटली beheaded, that is killed, Guruji's, okay, head, separated Guruji's head from his body. The people around witnessed the scene with shock. And अब ये सीन देख के आसपास के जितने भी लोग थे वो सब एकदम शॉक में आ चुके थे. दिस मेमोरियल डेट इज़ 11th November इन दिल्ली. अब ये सीन कहाँ हुआ था, ओके, इस डेट को हम 11th November को हम गुरुजी को उस दिन पर याद करते हैं. एंड दिस हैपेंड इन दिल्ली. आफ्टर द डेथ ऑफ टेग बहादुर, मैनी सिख टेम्पल्स, ओके, मतलब गुरुद्वारास, वर बिल्ट इन हिज मेमोरी. ओके, अब जब 9th गुरु टेग बहादुर जी नहीं रहे, ओके, विद सच बैड एंड अनहैप्पी एंडिंग, सो उनकी याद में, उनकी मेमोरी में बहुत सारे गुरुद्वारे बने गए थे. एंड 2 famous gurdwaras are the Gurdwara Seesganj Sahib, okay, in Delhi, is built over where he was beheaded. अब एक गुरुद्वारा उसी स्पॉट पे बनाया गया था जहाँ गुरुजी को, जहाँ औरंगज़ेब ने गुरुजी को मार दिया था, बीहेड किया था. सो इट इज़ गुरुद्वारा सीसगंज साहिब. सो सीस इज़ योर सर, जो हमारा हेड होता है, सर होता है, इसलिए उस गुरुद्वारे को ये नाम दिया गया है, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब. एंड द there is one more gurdwara. It is Gurdwara Rakabganj Sahib. It is also in Delhi. ओके, एंड अब ये कौन सी लोकेशन, कौन सी साइट मतलब लोकेशन, जगह, कौन सी प्लेस पर बना गया है, गुरुद्वारा रकबगंज साहिब. इट इज़ इन दिल्ली, बट इट वॉज मेड इन अ होम. एक ऐसे घर में बनाया गया था. एक गुरुजी के एक लर्नर थे, उनके एक शिष्य थे, उनके घर में ये
उनकी घर की जगह ये वाला गुरुद्वारा बनाया गया था। ओके, सो उस घर की स्पेशल बात ये थी कि जब सब यहाँ वहाँ हो गए तो गुरुद्वारा, सो आफ्टर द डेथ ऑफ गुरुजी, ओके, उनकी बॉडी को इस घर में क्रिमेट किया गया था। मतलब उनकी बॉडी के जो फाइनल रिचुअल्स थे, ओके, उन्हें जलाना था प्योरिटी के साथ। ओके, सो ये जो डिसाइपल थे इनके घर में, ओके, क्रिमेशन हुआ था। क्रिमेशन एक सेरेमनी होती है जो डेथ के बाद की जाती है, जो बॉडी होती है, ओके, डेड बॉडी को जलाने की जो प्रोसीजर होता है उसे क्रिमेशन कहते हैं। सो या गुरुद्वारा रकबगंज साहिब also in Delhi is built on the site of the residence. Residence means home of a disciple. Disciple is a shishya, learner of Guru Tegh Bahadur, who burned his house to cremate his master's body. Guruji was the first person to sacrifice his life for the freedom of other religions. Okay, so Guruji एक वो पहले ऐसे इंसान थे, या वो इंस्पिरेशनल इंसान बन गए थे, वो भगवान बन गए थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया किसी और धर्म को बचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सिखिज़म को बचाने पर फोकस करते थे और दे लव्ड ओनली द सिख पीपल। नो, उन्होंने सबके बारे में सोच के अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। फॉर दिस हिज फॉलोअर्स कॉल्ड हिम हिंद दी चादर, एंड इस सेक्रीफाइस के लिए उनको एक नाम दिया गया था, एक टैग दिया गया था जो उनके फॉलोअर्स ने दिया था, एंड इट वाज हिंद दी चादर। चादर इज़ ओके, अब वो कोई लिटरल चादर तो नहीं थे, बट वो चादर कैसे बने, वो शील्ड थे हमारे। ओके, हिंद इज़ हिंदू, इंडिया। ओके, द शील्ड ऑफ इंडिया। शील्ड मतलब एक ऐसा कवर जो हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो इट इज़ लाइक अ कवर। सो गुरुजी हमारी लाइफ के, ओके, सबकी लाइफ के क्या थे, शील्ड थे। सो हिंद दी चादर। सो इन द पिक्चर बिलो यू कैन सी, ओके, some pictures of Guru Tegh Bahadur ji. Now after watching this video, please complete the task assignment number 10 of homophones. It should be done in your grammar side, okay, the grammar copy. Thank you.